class, we have derived the Lewis equation, which is very useful in the design of the gearing. In the today's class, we will derive the fundamental law of gearing. So as per fundamental law of gearing, for the fixed velocity ratio power transmission, the common normal to the tooth profile. Suppose this is a teeth of PBM and there is a teeth of gear. Both teeth are contacting at a point. So this is, let point C is the point of contact. Okay, point C is the point of contact. So as per law of fundamental of gearing, the common normal to this teeth, normal to this teeth, both the teeth should pass through the pitch point. This is the fundamental law of gearing. So we will derive this law today. So this is the center of the gear number 1. This is the center of the gear number 2. So I am joining the center line. So let this is O1, this is O2, or let this is O1, top is O1, this is O2. This is the common normal. Let I am giving the name NN is the common normal. C is the point of contact. So I am mentioning over here, C is the point of contact. So at the point of contact, NN is the normal. NN is the normal. So from this O1, the gear 1 is attached. So let this is rotating at omega 1. So omega 1 is the angular velocity of gear number 1. This is the angular velocity of gear 1. And if this is rotating anti-clockwise and this will rotate clockwise, let the velocity is omega 2. So I am writing omega 2 is the angular velocity of gear number 2. C is the point of contact, Nn is the normal, omega 1 is the center of the first gear, omega 2 center of second gear, P is the pitch point, C is the point of contact. Okay, this is the teeth of the gear below gear, and this is the teeth of the top gear. This is the teeth of the bottom gear. So, as per law fundamental of gearing, omega 1 divided by omega 2 must be constant. है ना, हमको ये प्रूफ करना है ओमेगा 1 by omega 2 must be constant. So what will I do? I will join this point C to the center O1. Okay, I have joined point C to the center O1. O1 is the center. I have joined O1C. So O1 is C is the radius of the gear first. O1C. From C, because it is the point of contact. So from C, I am drawing it perpendicular. So that make me the figure again for the clarity. So let this is the point C. Point C is the point of contact. I am joining over C. बहुत लेट आते हैं. From C, I am drawing the perpendicular line. So let this point is CA. So CA will be the linear velocity of gear 1. And you already know V equal to R omega. So as per V equal to R omega, what can I write? CA is the angular velocity. O1C is the CA is the linear velocity. O1C is the angular velocity. And O1C is the radius. As per this, I can write the equation. So equation will be CA equal to O1C
O1c is the radius and angular velocity is omega 1. So let this is equation number 1. So I have written CA equal to, ये CA equal to ये चीज क्लियर है आपको? B equal to R ओमेगा से लिखा है जो लीनियर। दोबारा बताओ सर। देखिए O1 is the center, C is the point of contact between the teeth, so O1C is the radius, है ना? तो रेडियस की जगह तो मैं क्या लिखूंगा? O1C B equal to R ओमेगा। ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा की जगह ओमेगा 1 हो जाएगा फर्स्ट गियर के लिए, ओमेगा 2 हो जाएगा सेकंड गियर। सिमिलरली ये जो रेडियस है O1C, इस रेडियस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, है ना? लेट आई एम ड्राइंग ए परपेंडिकुलर, so this angle is 90 degree, this point is A, तो CA will represent the linear velocity. linear velocity हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर, V equal to R ओमेगा। सर ओमेगा 2 बराबर क्या लिखा है? Omega 2 is the angular velocity of gear 2, है ना? There are two gears in machine. This is the center of first gear O1, O2 is the center of the bottom gear. Omega 1 is angular velocity of first gear, omega 2 is the angular velocity of second gear, है ना? So it is the angular velocity of gear 2. So I am applying V equal to R omega for first gear. So for first gear I can write CA equal to O1C multiplied by omega 1. ये V equal to R omega से ही लिखा है। V की जगह मैंने CA लिखा है, ठीक है? CA रेडियस पे परपेंडिकुलर है, रेडियस O1C है, angular velocity omega. So this is the equation for gear number 1. Similarly, यदि मैं सेकंड सेंटर को जोड़ दूं, O2 को C से जोड़ दूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो ये भी रेडियस होगी। So O2C will also be the radius for the second gear. If I draw a perpendicular to this O2C, so this will represent the linear velocity, है ना? So let this point is B. So CB is the linear velocity for gear number 2. And writing 2 for gear 2. If I again apply V equal to R omega for second gear, so this is the linear velocity, this is the radius, V equal to R omega, V is the linear velocity means CB. So I will write CB equal to radius, now radius is O2C, multiplied by angular velocity omega, so that is omega 2. So this is the second equation as per V equal to R. These two equations are important. V equal to R omega. एक बार फिर से, C is the point of contact, O1C is the radius for first gear, O2C is the radius for the second gear. CA is perpendicular to first radius, CB is perpendicular to second radius, so this angle is also 90. है ना? CA is at 90 degree to first radius, CB is at 90 degree to second radius. तो ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, this is the linear velocity, this is the line of x of motion. If I draw the projection from here, so I have drawn the projection. तो CA का projection ये point represent करता है. Let this is the point, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं. Let this is the point X. So CAX is a triangle, CBX is also a triangle. So there are two triangles. Now, CAX and this triangle, I am drawing a perpendicular from here. Let this perpendicular is cutting this at point G. So O1G is perpendicular to line of action. अब जरा इस ट्रायंगल पे ध्यान देना. O1CG is a triangle and CAX is also a triangle. सर जी किस लिए लिया है सर? जी हमने क्या किया है, O1 से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया. ओके सर, ओके. लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है, ठीक है. तो परपेंडिकुलर डालने की वजह से O1G में ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है. तो 90 डिग्री होने की वजह से दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, राइट. अब यदि हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को
डिवाइड करते हैं तो हमें CA बाई CB का रेशो मिल जाएगा, यस और नो? मिल Yes. जाएगा। हाँ, मिल जाएगा सर। तो CA बाई CB का रेशो निकालिएगा। You find and tell me what is the ratio coming over. CA by CB will be given by O1C divided by O2C multiplied by omega 1 by omega 2. अब देखिए O1CG and CAX, ये दो ट्रायंगल मैंने लिखे हैं. I am writing these triangles are similar. What is the condition for the similarity of the triangle? Anyone please? Triangles are similar. Suppose this is triangle, this is one triangle, this is another triangle. इनके कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल है तो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं. यू नो ऑलरेडी. ए सिमिलरिटी है ना, ए सिमिलरिटी. किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के करस्पॉन्डिंगली इक्वल हैं, देन द ट्रायंगल्स आर नोन एज सिमिलर ट्रायंगल. तो देख लीजिए CAG और CAX, O1CG और CAX के आपस में सिमिलर है, यस और नो? देखो ये G पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये x जो है ये भी 90 डिग्री एंगल है बिकॉज़ इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस ना. सो दिस इज 90, दिस इज 90 एंड लेट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस. ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा बताइए, यस और नो? यस सर. बाय ज्योमेट्री है ना. इन्हीं भी दो लाइंस में यदि एंगल x है तो इनके परपेंडिकुलर्स में भी एंगल x ही होगा. तो सपोज ये कोई भी एंगल x है तो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर यदि आप देखें तो इस लाइन का परपेंडिकुलर तो NN है ना, इस लाइन का परपेंडिकुलर NN है और O1C का परपेंडिकुलर CA है. तो जब इन दोनों के बीच एंगल x है तो इन दोनों के बीच यहां भी एंगल x होगा. सो बोथ द एंगल्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई दीस ट्रायंगल्स आर सिमिलर. और सिमिलर होने की वजह से देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल. सो आई कैन राइट O1C डिवाइडेड बाय O1G, O1C divided by O1G equal to, I can write CA divided by CX. Their corresponding sides will be proportional. So I can write O1C divided by O1G equal to CA divided by CX. So let this is equation number 3. Correct? अब देखिए जहां से मैंने O1 से परपेंडिकुलर डाला था G पर, अब मैं O2 से परपेंडिकुलर डाल रहा हूं और ये काट कर रहा है यहाँ पे F पर. This is the last construction. O1G is perpendicular and O2F is also perpendicular. अब यहाँ पे फिर से दो ट्रायंगल हैं. एक ट्रायंगल है O2CF, ठीक है, O2CF is similar to triangle CBX. ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है. क्यों सिमिलर है? क्योंकि देखो एक एंगल इसका 90, एक एंगल इसका 90, ठीक है, और इसका जो एंगल है वो इसके एंगल के दूसरे एंगल के इक्वल, वही परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट है. तो these two triangles are also similar. So I can write that their corresponding sides will be proportional. So I can write O2C by O2F. ये विजिबल है पूरा एरिया. O2C divided by O2F will be equal to C by CX. This derivation is important from examination point of view. ध्यान से देख लीजिएगा. हम सर क्या लिखा है? CB over CX. यहाँ पे किया CA over CX, है ना. करस्पॉन्डिंग नहीं ले रहे हैं. देखो यहाँ पे O1C पहला दूसरा तो यहाँ भी पहला दूसरा लिया जाएगा. यहाँ पहला तीसरा तो यहाँ भी पहला तीसरा. सिमिलरली किया फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, है ना. ट्रायंगल सिमिलर. ये नीचे सर एक बार साइड होना सर, साइड होना सर. हाँ देख लीजिए.
कैन आई रब इट? साइड हो जाओ सर, ये रुक जाओ सर, साइड हो जाओ। हाँ बिल्कुल। सर ये इक्वेशन 4 में सीबी ओवर क्या लिखा हुआ है? Cx, सीबी ओवर सीएक्स Cb over Cx, नीचे से। हाँ Cx है ना, इसमें भी बिलो Cx है, इसमें भी Cx है, Cb over Cx। कुछ खास नहीं है, हमने सिमिलरिटी लगाई है ना, दो ट्रायंगल्स के नाम मैंने लिख दिए हैं, O1CG Cx सिमिलर हैं, इसी तरह से O2C और CBx सिमिलर हैं, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। एक्चुअली हम क्या करना चाहते हैं, हम ω1 by ω2 को फाइंड करना चाहते हैं ना, तो ω1 ω2 को हम कांस्टेंट प्रूफ करेंगे है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, बस अब जस्ट 2-3 लाइन का डेरिवेशन बचा हुआ है। तो इक्वेशन 3 आपके सामने है, इक्वेशन 4 आपके सामने है, ठीक है, और ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और एक इक्वेशन ये भी है CA/CB वाली। तो लेट इस इक्वेशन को कोई नाम दे देते हैं, लेट दिस इज इक्वेशन A, कैपिटल A है ना, 1 2 कैपिटल A 3 एंड 4, 5 इक्वेशन मैं लिख चुका हूं आपके सामने, ठीक है। अब मैं ये पार्ट जरा सा रब कर रहा हूं ऊपर का, तो अब देखिए इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 4, सो इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, देखो यहाँ पे क्या है, CA/CX, यहाँ पे CB/CX, CX कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, केवल CA/CB। CA/CB। हाँ, आई विल फाइंड ओनली CA/CB, CX कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए O1C by O2C, O1C डिवाइडेड बाय O2C, ये मिल जाएगा मुझे, और O2F ऊपर चला जाएगा तो O2F by O1G, O2F डिवाइडेड बाय O1G, ये मुझे मिल जाएगा CA/CB, ठीक है। अब इसको मैं इक्वेशन नाम दे देता हूं 6, करेक्ट। अब देखो इक्वेशन 6 और इक्वेशन A, इक्वेशन 6 में क्या है, CA/CB का फॉर्मूला है, इक्वेशन A में भी CA/CB का फॉर्मूला है, तो देयर राइट हैंड साइड्स मस्ट बी इक्वल। इक्वेशन 6 और इक्वेशन A को आप कंपेयर करें, उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, सो देयर राइट हैंड साइड मस्ट आल्सो बी इक्वल। तो मैं इन दोनों राइट हैंड साइड्स को इक्वल कर दे रहा हूं। तो आप देखिएगा मैंने कर दिया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है O1C डिवाइडेड बाय O2C मल्टीप्लाइड बाय O2F डिवाइडेड बाय O1G इक्वल टू O1C डिवाइडेड बाय O2C मल्टीप्लाइड बाय ω1 बाय ω2। O1C कैंसिल आउट, O2C कैंसिल आउट, करेक्ट। तो ω1 बाय ω2 क्या बचा, ω1 बाय ω2 इज गिवन बाय O2F डिवाइडेड बाय O1G, ये मिलेगा, यस सर। राइट, O2F बाय O1G, ठीक है। तो ये नीचे का पार्ट मैं रब कर लेता हूं फिलहाल, एक लाइन और रह गई है इसमें। तो मुझे मिल गया ω1 बाय ω2 is O2F divided by O1G, and this can be written as O2P divided by O1P, ω1 by ω2। अब आप पूछ सकते हैं उससे कि O2P by O1P इसको कैसे लिखा जा सकता है क्वेश्चन दिमाग में आपके या नहीं? जरूर होगा। यस सर, ऐसे मेरे दिमाग में तो है सर ये क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बताता हूं, जरा से नोट करिए, आई विल लव इट। इसको नोट कर लीजिए, 2 लाइंस को। नोटेड सर। ओके, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, ये डायग्राम था हमारा। अब देखो O2F ये वाली लाइन है, ध्यान से देखना, O2F, O1G कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, ठीक है।
दो ट्रायंगलों पे ध्यान दो, O1GP, O2FP, दोनों में देखो एक एंगल 90, दूसरा एंगल 90, दोनों का एक 90 इक्वल है, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल क्या है, प्रेशर एंगल है अल्फा, ये एंगल क्या है, ये भी प्रेशर एंगल है अल्फा। अब आप कहोगे ये अल्फा क्यों है? अल्फा तो वो होता है जो कॉमन नॉर्मल टेंजेंट के साथ बनाता है ना, तो ये हमारा कॉमन नॉर्मल है, और ये P पॉइंट से हमारी टेंजेंट जा रही है, टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, अल्फा, ठीक है। अब देखो जब इन दोनों लाइनों के बीच एंगल अल्फा है तो इनके परपेंडिकुलर्स के बीच भी एंगल अल्फा ही होगा। तो इस कॉमन नॉर्मल का परपेंडिकुलर कौन है, O1G, इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर कौन है, O1P, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है वो भी प्रेशर एंगल के बराबर ही होगा। इसी तरह से ये एंगल भी अल्फा के बराबर होगा, सिमिलर फैशन, जैसे ऊपर हमने ज्योमेट्री लगाई है ऐसे ही नीचे ज्योमेट्री लगाएंगे। तो अल्फा अल्फा इक्वल 90 इक्वल, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, और सिमिलर होने से इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। तो आई कैन राइट O1G divided by O1P, O1G by O1P equal to O2F by O2P, O2F by O1 O2P, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए था, O2F by O1G। अब देखो इसमें O2F by O1G क्या मिल जाएगा, O2F by O1G will be given by O2P by O1P, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया O2P by O1P। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर है सर। अब देखो ओमेगा 1 by ओमेगा 2 is O2P by O1P, दिखाओ। तो इसको हम और भी कुछ कर सकते हैं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय ओमेगा 2 कैन बी रिटन एज O2P प्लस O1P डिवाइडेड बाय O1। बाय रेशियो प्रोपोर्शन आई कैन राइट दिस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाय ओमेगा 2, रेशियो प्रोपोर्शन आप जानते ही हैं, A by B equal to C by D, then I can write A यस सर, यस सर। C plus D by D, है ना, वही फॉर्मूला लगा दिया मैंने। अब देखो O2P plus O1P, O2P plus O1P is a constant, it is the center line between the gears. O2P and O1P is a O1 O2 is the constant, it is a center distance, so this is constant by O1P। तो फिर अब यहां से भी प्रूव होता है कि P is a fixed point, P क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होने के लिए फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। O2P by O1P आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है कि P must be a fixed point, P must be a fixed point। जब ये फिक्स्ड पॉइंट होगा तभी ओमेगा 1 by ओमेगा 2 फिक्स होगा। सो दिस इज सम अबाउट द फंडामेंटल ऑफ गियरिंग, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो इसमें कोई डाउट हो फंडामेंटल ऑफ गियरिंग में तो प्लीज बोलिए, अदरवाइज आई विल प्रोसीड फॉर द न्यूमेरिकल, स्मॉल न्यूमेरिकल। सर 2 मिनट का न्यूमेरिकल है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, बेस्ड ऑन दिस ओनली। तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल ऑफ गियरिंग क्लियर है आपको, सो कर लीजिएगा। अक्सर इसको पूछते हैं इंटरव्यूज में भी, इसकी डेफिनेशन भी क्लियर होनी चाहिए। कॉमन नॉर्मल टू द टूथ प्रोफाइल मस्ट ऑलवेज पास थ्रू द पिच पॉइंट, ठीक है। चलिए अब मैं जस्ट एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, इट इज अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल, ना, इट इज गिवन इन द लास्ट एक्सरसाइज, इट इज अनसॉल्व्ड। तो इन ए पेयर ऑफ स्पर गियर्स, मैं पढ़ रहा हूँ जरा सा, है ना, क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ 17.1, so you can connect from the book and it is page number 677, okay। So in a pair of spur gears, the number of the teeth on the pinion and the gear are 20 and 100. So Z1 is 20, Z2 is 100, this is given, teeths are given, the module is 6 mm, m equal to 6 mm, है ना। कैलकुलेट द सेंटर डिस्टेंस, है ना, तो इसको सेंटर डिस्टेंस फाइंड करनी है, O1 O2 जो भी हमने बताया था, O1 O2 सेंटर डिस्टेंस फाइंड करना है। दूसरा पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द पिनियन एंड द गियर, पिच सर्किल डायमीटर D1 क्या फाइंड करना है, पिच सर्किल डायमीटर D2 भी फाइंड करना है। सर पेज नंबर कितना है सर? इट इज पेज नंबर 677, है ना।
अनसॉल्व क्वेश्चन है वी भंडारी का 17.1। सो द सेंटर डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है, पिच सर्किल डायमीटर फाइंड करने हैं, अडेंडम और डिडेंडम फाइंड करना है, अडेंडम भी फाइंड करना है, डिडेंडम भी फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। और टूथ की थिकनेस फाइंड करनी है। टूथ की थिकनेस क्या होती है, मान लीजिए ये टूथ है, तो ये यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है पिच सर्किल डायमीटर पर, ये जो थिकनेस है ये कहलाती है टूथ थिकनेस, है ना। तो ये भी हमको फाइंड करना है। बॉटम क्लियरेंस, गियर रेशियो भी फाइंड करना है, गियर रेशियो। ठीक है, बॉटम क्लियरेंस। अब देखिए तो करेंगे कैसे, इट इज वेरी इजी। सबसे पहले सेंटर डिस्टेंस है ना, मैं सिर्फ आपको आइडिया बताऊंगा। सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हाफ d1 प्लस d2। d1 को मॉड्यूल के टर्म में लिख सकते हैं mz1, इसको mz2, तो ये हो जाता है m/2 z1 प्लस z2। m की वैल्यू कितनी है 6, z1 की वैल्यू कितनी है 20, z2 कितना है 100। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है फटाफट बताइए। 120/2 60, 60 into 6 360, तो आंसर इज 360 मिलीमीटर। फर्स्ट पार्ट इज ओवर। ठीक है, आंसर इज 360 मिलीमीटर। अब दूसरा पार्ट है पिच सर्किल डायमीटर d1। तो d1 बहुत आसान है, mz1, m की वैल्यू 6 है, z1 की वैल्यू 20 है, कितना हो गया 120 है। ठीक है, तो d1 इज ओवर। d2 mz2 अपने आप निकाल लेंगे, mz2, m की वैल्यू 6, z2 की वैल्यू 100, तो d2 कितना हो गया 600, 600 हो गया D2। तो d2 इज ओवर, d1 इज ओवर, O1 O2 ओवर। अब आता है अडेंडम। ठीक है, अडेंडम और डिडेंडम हमेशा मॉड्यूल के प्रोपोर्शन में होते हैं। मॉड्यूल की वैल्यू 6 है, ठीक है, तो अडेंडम की वैल्यू 20 डिग्री प्रोफाइल में, प्रेशर एंगल कितना 20 डिग्री प्रोफाइल। यहाँ पे कुछ दिया है क्या, कुछ दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम अज्यूम करेंगे कि द प्रोफाइल इज 20 डिग्री। जनरली बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल जो मानी जाती है वो 20 डिग्री मानी जाती है। तो 20 डिग्री प्रोफाइल के लिए अडेंडम की वैल्यू होती है m इक्वल अडेंडम। तो अडेंडम m के इक्वल होता है, तो m की वैल्यू कितनी है 6, तो अडेंडम की वैल्यू भी 6 हो जाएगी। करेक्ट। अब दूसरा आता है डिडेंडम। डिडेंडम की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.25 m। तो 1.25 into 6, ये डिडेंडम की बात कर रहा हूं। और ये जो फॉर्मूले हैं 1.25 m n, ये सारे फॉर्मूले डेटा बुक में गिवन होते हैं। 20 डिग्री प्रोफाइल के लिए भी गिवन है, 14.5 डिग्री के लिए भी गिवन है, अदर प्रोफाइल्स के लिए भी गिवन है। तो जस्ट यूज दिस फॉर्मूला, यू विल बी एबल टू फाइंड द अडेंडम एंड डिडेंडम। तो 6 into 1.75 कितना हो जाएगा 1.25, जरा बताओ। 7.5, ठीक है, डिडेंडम भी हो गया। अब इसके बाद आ रहा है क्लियरेंस पूछा है। क्लियरेंस, क्लियरेंस जो होता है वो डिडेंडम माइनस अडेंडम होता है। डिडेंडम में से अडेंडम को माइनस कर दें तो दोनों टूथ के बीच का क्लियरेंस कहलाता है। ठीक है, तो क्लियरेंस है डिडेंडम माइनस अडेंडम, 7.5 माइनस 6, तो कितना आ गया बेटा के बताइए। इट इज 1.5 क्लियरेंस भी हो गया। अब लास्ट थिंग बची क्या, गियर रेशियो। गियर रेशियो क्या होता है Z2/Z1, Z2 100, Z1 20, कितना आ गया गियर रेशियो 5। तो गियर रेशियो Z2/Z1 भी होगा, D2/D1 भी होगा, है ना। इसी से भी निकाल सकते हो, D2/D1 करोगे तब भी वही आ जाएगा 600/120 5। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन, वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल, है ना। छोटे-छोटे 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करीब-करीब सिंपल एंड सो इजी। हां, इट इज वेरी इजी। सर D2 600 कैसे आ गया बताना। D2 इज mz2, देखो D इक्वल टू mz होता है फॉर्मूला, तो D2 इक्वल टू mz2, m की वैल्यू 6, z2 की वैल्यू 100, तो 100 into 6 600। सर एडेंडम कब पूछ रहा सर, एडेंडम में कैसे निकाला बस। अडेंडम, अडेंडम के लिए देखो डाटा बुक में फॉर्मूले हैं 20 डिग्री प्रोफाइल के लिए अडेंडम इक्वल टू m ओनली। यस सर। ठीक है, अडेंडम का फॉर्मूला सिर्फ m होता है 20 डिग्री प्रोफाइल में। ओके सर। तो हमने डाटा फॉर्मूला ले लिया है ना, अडेंडम अगर सर यहाँ और क्लियरेंस का माइनस होता है। सर ये कह रहा हूँ, अगर सर यहाँ पे 20 डिग्री की जगह 40 डिग्री होता सर उसके लिए अलग होता ना फिर तो। तो फिर हाँ, डाटा बुक में फिर 14.5 वाला फॉर्मूला देख लेते, और वहां पे वो जो फॉर्मूले हैं वो उसमें ये रहता है कि अडेंडम की वैल्यू जैसे यहाँ पे m है, तो वहां पे फॉर्मूले में थोड़ा चेंज होगा, 0.8 m होगी मॉड्यूल के फॉर्म में, है ना। गियर्स प्रोफाइल में सारे फॉर्मूले मॉड्यूल के रेस्पेक्ट में ही चलते हैं। इफ वी नो द मॉड्यूल वी कैन कैलकुलेट द अदर थिंग्स। ठीक है, तो डाटा बुक में 14.5 वाला देख लेते, और 14.5 भी नहीं होता तो फिर हम वो देख लेते 20 डिग्री स्टफ। 3 प्रोफाइल है,
तीनों प्रोफाइल के फॉर्मूले वहां पे दिए हुए, अडेंडम का भी, डिडेंडम का भी, क्लियरेंस का भी, टूथ थिकनेस का भी, हर चीज का फॉर्मूला। टूथ थिकनेस का फॉर्मूला भी है 1.5708 m, ये टूथ थिकनेस का फॉर्मूला है। ठीक है, तो m की वैल्यू 6 है, 6 इंटू इतना करोगे तो आपकी टूथ थिकनेस भी निकल जाएगी। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक टूथ थिकनेस और एक होती है टूथ स्पेस। ठीक है, अब दोनों में अंतर समझ लो। टाइम हो गया सर। बस हो गया, मेरा भी टाइम हो गया। ये देखो, ये पहला टीथ है, ये दूसरा टीथ है, तो ये टूथ थिकनेस हो गई, इसकी ये टूथ थिकनेस हो गई, दोनों आपस में बराबर होंगी 1.5708, यही होगा ना। अब देखो टूथ, ये पहला टूथ, उसके बाद ये दूसरा टूथ, तो ये तो हो गई टूथ थिकनेस, और ये दोनों के टूथ के बीच में जो गैप है, दिस इज टूथ नंबर 1, दिस इज टूथ नंबर 2, इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप कहलाता है टूथ स्पेस। एक होता है टूथ थिकनेस और एक होता है टूथ स्पेस। टूथ स्पेस और टूथ थिकनेस थ्योरेटिकली बराबर होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली टूथ स्पेस थोड़ा सा टूथ थिकनेस से ज्यादा होता है, क्योंकि यदि हम बिल्कुल बराबर रखेंगे तो ऊपर का टीथ नीचे के टीथ में जैम हो जाएगा, तो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस रखा जाता है। ठीक है, तो टूथ स्पेस स्लाइटली ज्यादा होता है, लेकिन फॉर्मूले दोनों के सेम होते हैं 1.5708 m। सो दिस इज कंप्लीट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस क्लास। सर कुछ आइडिया है क्या सर, कॉलेज कब खुलेंगे? मोस्ट प्रोबेबली देखो नेक्स्ट मंथ केसेस जैसे ही डाउन होना शुरू हो जाएंगे। सर टूथ थिकनेस का भी फॉर्मूला अपने डेटा बुक में ही होगा हमारे पास तो। यस 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 1.5708 m, m के फॉर्म में है सारे फॉर्म। देखो गियर्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉड्यूल। यदि आपने मॉड्यूल फाइंड कर लिया, इट मींस आपने गियर की डिजाइन कर ली। मॉड्यूल मिल गया तो अडेंडम मिल गया, क्योंकि मॉड्यूल के रिस्पेक्ट में होता है। डिडेंडम मिल जाएगा, क्लियरेंस मिल जाएगा, टूथ स्पेस मिल जाएगा, सब कुछ मॉड्यूल से प्रोपोर्शनेट में है। और जब वो सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी, देन वी कैन डिजाइन दैट, है ना।